This conference will now be recorded. Hello, am I audible to everyone? Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Good evening, sir. This conference will now be recorded. Okay, first of all, a very good evening to everyone. Ashok this side, and I am very glad to be part of this virtual project conference organized by Encino Research and Development Private Limited. I would like to welcome all the delegates and participants from different colleges, universities of Uttarakhand to this virtual project conference. The basic idea behind this virtual project conference is to discuss all the project ideas of students and to guide them regarding how they can create their projects for final year or for pre-final year. So we have divided this conference in different slots. Now we have around about 20 students in this slot, and we will discuss the projects of all the students one by one. So what will be the scenario of this? We'll call one student and we'll discuss the project idea of that particular student, and then we will guide how you can create this project, what should be the requirements of the hardware and software, and how you can go ahead with this project, what will be the future prospects. And those who don't have any idea about the projects, that some students have filled the form but they don't have any idea, so there is no problem. If you are in this session, what you can do, you can listen to each and everything, you can get some ideas from other students, and if you will be having any domain specific, then we can give you idea about those projects. So it is not like that we will ask you each and everything related to your project. You just have to discuss the things. Like, firstly, I would like to welcome Mr. Singh with us, and he will guide you about the projects. So Mr. Singh will guide you about your particular domain. So let's start with the first name, Kshitij Chaudhary, but I think he's not available in this session. So let's leave him. Let's directly go to Purvanshi Gupta. Purvanshi, unmute your mic. We will be Yes, sir. discussing your project. Yeah. Am So I audible? Purvanshi, yes, you are audible, and we have received your project, that is Intelligent System for Human Safety. So what you want in your project, just explain this in few words. Okay, sir. First of all, good evening, everyone. So, sir, basically, as the name suggests, that is intelligent system for human safety. So, basically, what I am trying is to make a security system for a person who is in danger. So, basically, as we know that there are various IoT based projects made before also, like for the GPS tracking system and many more. So what we are trying is to make a light, affordable and a portable device. Like we know that we have made the IoT based project on a breadboard or using some things, but I want that in our project I could make something that is portable, that can be that one person can have every time, like he or she can wear it, or maybe in the pocket he can took it, or in the back. So I'm trying to make a like a tracking system in which if someone is in danger, so if he or she feels like unsafe, so he can press any the button on that device, and the location or any unfair things, like if through other sensors we can embed on it. So I'm trying to do that. Okay, Okay. we have got Yeah. your idea, Purvanshi.
So that means you are going to create one portable device. I can say it is a kind of wearable device which human can wear, and you can track all those things which you were discussing about. So now I would like to call Vijay sir, Mr. Singh sir. Please guide her how she can go ahead with this project. Okay, sir. Hello. Hi, everyone. Hello, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग तो वंशी, जैसे आपने बताया कि आपको ये बनाना है, पोर्टेबल बनाना है ना? Yes, sir. और आपने बताया कि जैसे आप IoT के भी प्रोजेक्ट्स मतलब इस टाइप के अवेलेबल है। तो जैसे आपने बताया कि ब्रेडबोर्ड, तो हम पहले नंबर जैसे आपने बोला ब्रेडबोर्ड का तो हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर हमें पोर्टेबल बनाना है तो सबसे पहले उसको स्मॉल साइज, तो हम उसके लिए ले सकते हैं सिंगल लेयर PCB। तो हम फर्स्ट उसकी Okay. PCB डिजाइन, तो PCB के लिए हमें पहले कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे कि हमें रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स क्या क्या अवेलेबल है जो हमारे सेंसर के हमारे जो डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग जो यूज हो सके, है ना? तो इसमें जैसे आपने बताया कि इसके लिए पहले हमें एक चाहिए होगा माइक्रो कंट्रोलर, जिसके Yes, थ्रू हम sir. सारे सेंसर की हम वैल्यूज को इसमें हम लोग। Sir, I would like to interrupt you for a second. Please turn on your camera, sir. ओके, ठीक है। तो पहले हमें एक माइक्रो कंट्रोलर चाहिए होगा। इसमें माइक्रो कंट्रोलर जैसे बहुत, अगर हमें जैसे आपने बताया पोर्टेबल, तो पोर्टेबल के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कुछ माइक्रो कंट्रोलर जैसे आर्डिनो, आपने सुना होगा आर्डिनो के बारे में। Yes, sir. आर्डिनो है, आर्डिनो की कई सारे इसमें बोर्ड्स आते हैं। तो हम अगर जैसे आपने पोर्टेबल है तो इसमें हम यूज कर सकते हैं आर्डिनो नैनो, यूज कर सकते हैं आर्डिनो, आपका इसमें मिनी यूज हो सकता है। और अगर आपको Yes. वेरिएबल बनाना है तो इसमें एक और आता है आर्डिनो लिली पैड। वो थोड़ा दिखने में वो थोड़ा सर्कुलर शेप होती है, उसके साथ हम इजी इसको वेरिएबल बना सकते हैं और हैंडी, काफी ज्यादा हैंडी बना सकते हैं। तो इसमें कई सारे सेंसर, जैसे आपने बताया कि इसमें भी आपको जो आपको इसमें डेटा जो आपको देखना है कि जो फॉल्ट डिटेक्शन होगा, तो इसके लिए आपने जैसे बताया हार्ट बीट एंड प्लस आपने इसका Yes, पल्स sir. रेट। तो एक Yes, इसका sir. पल्स सेंसर आता है, वो सिंगल सेंसर है। इससे बेस्ट सेंसर और मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा मैक्स 30100 करके। तो इस सेंसर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो भी आप मतलब डेटा लोगे, तो इसमें हमारी हार्ट Yes. रेट और प्लस हार्ट रेट के साथ साथ इसमें आपका आ जाएगा इसका पल्स रेट। तो ये दो चीज इसमें सॉरी ऑक्सीजन एंड पल्स, ये दो चीज आपको एक साथ मिल जाएगी इसमें, है ना? पॉल सेंसर के लिए आप देखें तो उसके लिए हम इसमें एक हमारा है MPO एक्सेलर सेंसर आता है 650, इस टाइप Yes, से sir. आते हैं। ADXL 355 भी आता है, 3554, इस टाइप से इसमें सेंसर्स हैं जो आपके इजीली इसमें मिल जाएगा, ठीक है? देन फिर आता है जैसे आपने बताया कि ये वेरिएबल हो, तो उसके लिए हम इसमें जा सकते हैं प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग। तो ये इसके लिए हम इसको गुड लुक भी दे सकते हैं, मतलब आपको ब्रेडबोर्ड से एक अलग ही डिवाइस बन जाएगी। आप 3D प्रिंटेड इसकी केसिंग बना सकते हो, उसमें आप अच्छे से सारे कंपोनेंट को इजीली प्लेस कर सकते हो, है ना? तो ये Okay, भी sir. है, इस तरीके से आप कर सकते हो। Sir, can I ask questions? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। Okay. Sir, like sir, अगर हम फॉल्ट डिटेक्ट और लाइक पल्स ऑक्सीजन मीटर वाला जो है, उन सेंसर्स के अलावा मतलब लाइक अदर कोई सेंसर्स इसमें यूज अगर मतलब आप सजेस्ट करना चाहें तो, कि लाइक हाँ, कुछ और भी कर सकते हैं कि? अच्छा, मतलब इनके अलावा और क्या हम सेंसर यूज कर सकते हैं, आप ये बोल रहे हाँ, हैं ना? यस सर। अब देखिए, जैसे वेरिएबल डिवाइसेस तो आजकल जैसे ज्यादातर ऐसा डायबिटिक्स होते हैं, तो उनके लिए भी आजकल एक ऐसी डिवाइस मतलब बना सकते हैं हम कि उसमें हम उसी के थ्रू हम टेस्ट कर ले डायबिटीज को भी। तो ये यस भी सर. हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके सर. ओके. हाँ, ये भी इसमें यूज हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर यस हम नहीं मेजर प्लस कर आप सकते हैं। यस, बॉडी टेम्परेचर के लिए भी आप जा सकते हैं। प्लस आप अगर चाहें तो आप इसमें बीपी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। बीपी मेजरमेंट के लिए भी आप सेंसर ले सकते हैं, और उसमें आपको अगर आप जैसे सर ने आपको एक सेंसर बताया जिसमें आप पल्स और ऑक्सीजन लेवल एक साथ चेक कर रहे हैं, ऐसे ही बीपी मेजरमेंट के लिए भी एक सेंसर आपको मिल सकता है जिसमें आप बीपी मेजरमेंट प्लस पल्स एक साथ चेक कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए भी आप जा सकते हैं। और बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप वेरेबल डिवाइस में जा रहे हैं तो आप वॉच टाइप की डिवाइस भी क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप का आपके पास एक आइडिया हो सकता है कि एक वेरिएबल वॉच बनाई जाए जिसमें आप इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट असेंबल कर सके। उसके लिए 3D प्रिंटिंग का आपको सर ने आइडिया दिया है, जिससे उसका लुक जो है बहुत स्मार्ट हो जाएगा।
ओके सर। सर एंड वन थिंग मोर सर, लाइक जैसे हमें माइक्रो कंट्रोलर तो आर्डिनो में तो आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्लियर कि नैनो यूज करते हैं बिकॉज वो थोड़ा मतलब स्मॉल रहेगा। बट सर जैसे और भी लाइक डिवाइसेस हैं, जैसे मैंने ना नेट पे सर्च किया तो लाइक जैसे एक नोड MCU करके है एंड सर एक TTGO टी कॉल करके भी था। तो सर उनमें से मतलब लाइक कि कौन सा बेटर रहेगा ऐसा कुछ? देखिए ये दोनों डिवाइसेस जो है ये है ज्यादातर IoTs के लिए यूज होती है। तो यस सर। अगर आप IoT को टारगेट कर रहे हो तब तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप इसके लिए, आपको मैंने सजेशन दिया था, या तो आप आर्डिनो नैनो यूज करिए या आर्डिनो मिनी प्रो, ये दोनों ज्यादा बेस्ट रहेंगे। ओके और सर। अगर ओके सर। फर्स्ट टाइम बनाना है तो इसके लिए आप, मैंने बताया लिली पैड करके होता है, वो साइज में भी बहुत अच्छा, मतलब स्मॉल साइज होता है और ऑन बोर्ड उसके डबल लेयर साइड होती है, तो कंपोनेंट्स हम इजीली भी उसमें प्लेस कर सकते हैं। और एक और चीज आप इसमें एडवांसमेंट के लिए ले सकते हैं, इसमें आप 60 इसमें आप OLED डिस्प्ले यूज कर सकते हो। तो यस सर। उससे क्या है, आप इसमें जितने भी आपकी रीडिंग्स आ रही है वो एज अ वॉच भी आप यूज कर सकते हो। तो एज अ वॉच भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट वन क्लिक पे आपका सारा इसमें डेटा आ जाएगा, हार्ट बीट चेक करने का आ जाएगा। जैसे आप बटन क्लिक करोगे, पुश बटन हम यूज कर यस। सकते हैं, तो उस केसेस में सारा डेटा हमारा पुश बटन सिंक आ जाएगा सारा। एक सिंपल पुश बटन प्रेस करेंगे, सारा डेटा उसमें आ जाएगा, तो आप मतलब देख सकते हो लाइव। ओके सर। और सर अगर लाइक आई एम फोकसिंग ऑन द IoT साइड ओनली, लाइक कि जो डेटा हमें विजिबल हो वो मतलब किसी और के पास भी चला जाए। ओके, तो तो मतलब सर, तो आप ये सर लाइक कि कोई अगर कोई डेंजर में है तो मतलब उसका जो डेटा है अगर इन केस, तो वो उसके पेरेंट्स या फिर मतलब लाइक किसी फ्रेंड्स या उनको भी जाए, ऐसा कुछ? एज अ गार्जियन या किसी के पास भी चला जाए, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम वाईफाई, पहले नंबर इसको वाईफाई कनेक्टिविटी देने पड़ेगी, तो IoT पे आ जाएगा ये दोबारा। फिर आपके लिए ओके। इसके लिए नोड एमसीयू की बेस्ट है फिर। ओके सर। हाँ, नोड एमसीयू के थ्रू हम इसमें एक आईपी एड्रेस, सॉरी API डाल देंगे। API पे आपका सारा डेटा हम कहीं पे भी इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। ओके सर। सर और जो सर जो 3D प्रिंटिंग केसिंग है सर, वो तो लाइक उसमें ये डिपेंड नहीं करेगा ना, लाइक कि मतलब लाइक डिवाइसेस अगर हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो मतलब वो हाँ, तो। इस मैं आपको एक बताना चाहूंगा, ऑनलाइन भी काफी सारे आजकल फ्री सॉफ्टवेयर हैं, तो वहां पे जाके आप, जैसे आपने बताया कि आपने कॉन्फिडेंस लिया, नोड यस। एमसीयू जैसे बता रहे हैं, तो उसको आप प्लेस करके, और जो भी अपने कॉम्पोनेंट है उसको प्लेस करके देन उसके बिहाफ पे आप बॉडी उसकी डिजाइन कर सकते हो। तो आपके लिए भी इजी रहेगा कि मतलब आपके सारे कॉम्पोनेंट एक तो एग्जैक्टली फिटिंग के साथ आएंगे, ठीक है, ये इसके यस लिए सर। बेस्ट है। तो आप 3D प्रिंटिंग केस आप अपने कंपोनेंट के हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, उनके थ्रू आप जाइए, कंपोनेंट प्लेस करिए, देन केसिंग डिजाइन करिए, एंड देन आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं उसको फिर। ओके सर। ओके सर एंड सर वुड यू लाइक टू सजेस्ट कि लाइक हम ये सारे सेंसर्स या वो मतलब लाइक कि कहाँ से खरीदें एक तरीके से? ओके, क्योंकि देखिए अगर आप ऑनलाइन अगर हम लेते हैं तो उसमें ये रहता है कि टेस्टिंग टाइम मतलब रिटर्न टाइम पीरियड थोड़ा कम रहता है, और इतने में मतलब टेस्टिंग में अगर दिक्कत होती है तो इसलिए। देखिए जैसे लोकल मार्केट से जो हम परचेज करते हैं उसमें आपको कोई वारंटी, वो 1 डे की भी वारंटी नहीं देते। तो एटलीस्ट आपके ओके। पास ऑनलाइन में क्या रहता है, 10 to 15 डेज के अलग अलग साइट्स हैं, कुछ 10 डेज के लिए देते हैं, कुछ 15 डेज के लिए आपको वारंटीज प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा, आप ऑनलाइन परचेज में थोड़ा कॉस्टली होता है, पर आपको 10 डेज के यस। लिए या 15 डेज के लिए इतना टाइम, मतलब इजी टाइम है, आप इसमें अपने सारे डिवाइस को मल्टीपल टाइम, सॉरी सारे अपने हार्डवेयर को आप मल्टीपल टाइम टेस्ट कर सकते हो, है ना। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, कभी भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, कभी भी कुछ भी क्रॉस कनेक्शन हो सकता है, तो डैमेज हो सकता है, तो वो एक अलग केस ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। है। Okay, so Purvanshi, I think you don't have any other doubts now. So now we can go to the next candidate, and it is now Adarsh Kumar Singh. Adarsh, Good evening, sir. good evening. Adarsh, if it is possible for you, please turn on your camera. Okay, sir. If it is possible for you, there is no force, and then start describing your project in few words. Yes, sir.
Am I visible, sir? Yes. Yes, you are visible. Yes, sir. Sir, my project is a handheld gimbal system, which requires 3 servo motors, one accelerometer sensor, that is MPU6050, and Mini, Arduino Uno, Arduino Mini, that's up to our convenience, and batteries. That's the minimum requirement of the gimbal system that I'm going to make. Sir, I'm facing the problem in the code, like calibrating the x-axis, y-axis for the movement of the servos. That I need a little help. ओके आदर्श, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम आ रही है कि वो कैलिब्रेट नहीं हो रहा Yes, sir. है ना? तो आपने कैसे, मतलब अभी आपने कैसे टेस्ट किया उसको कैलिब्रेशन? ऐसा मतलब आपने पूरा गिम्बल बना लिया है या मतलब किस स्टेज पर है अभी आप? सर अभी बनाया नहीं है, अभी उसका मैं ऑनलाइन देख रहा था अभी उसको, तो उसका वो जो पार्ट है सॉफ्टवेयर का, वो थोड़ा टफ लगा मुझे ओके एग्जीक्यूट ओके करने से पहले, इसलिए मैंने पूछ लिया वो चीज। ओके, मतलब आपको जो प्रॉब्लम जो हल्का फेस हो रहा है अभी आ रहा है कि कोडिंग पार्ट की तरफ, कि आपको मतलब कोडिंग यस। इश्यूज है ना? तो मतलब अभी आपने ट्राई नहीं किया है अभी, मतलब नहीं ऐसा नहीं। आपका? ओके ओके, बस मुझे वही था कि आपने मतलब बोला ना कि स्टेबिलिटी का देख के ना, तो देखिए इसमें ना वन बाय वन पहले तो हम इसका पूरा स्टैंड वगैरह रेडी करेंगे। आप भी इसमें 3D प्रिंटिंग की हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज इसमें आप अपना कार्डबोर्ड के थ्रू या पीवीसी पाइप के थ्रू आप अपना इजी गिम्बल स्टैंड बना सकते हो। यस। फिर वन बाय वन हम इसमें क्या करेंगे, वन बाय वन मोटर्स को हम टेस्टिंग करेंगे। इसका जो बेस्ट सेंसर है 6050 सेंसर जो है आपका एक्सीलरोमीटर सेंसर, उसके थ्रू हम इसको टेस्ट करेंगे। देन हम इसमें मतलब पॉसिबिलिटीज निकाल पाएंगे। तो इतना नहीं है, काफी सारी ऑनलाइन इसमें है जिसपे हम मतलब वर्क कर सकते हैं, तो हो जाएगा। ऐसा कोई इसमें टफ पार्ट नहीं है। कोडिंग के लिए रहेगा तो आप सजेशन ले सकते हैं हमसे, हम लोग आपको सजेस्ट कर देंगे, गाइड कर देंगे कि कैसे इसमें कोड वर्क करेगा। सर लोड कैपेसिटी के हिसाब से सर्वो कैसे सिलेक्ट करनी है, ये समझ नहीं आया था मुझे। आपका लोड कितना है, देखिए ये ना कैलकुलेशन के ऊपर आएगा कि कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आपका वेट आ रहा है, टोटल वेट ना कितना वो हैंडल कर पाएगा, क्योंकि जो मोटर्स होती है उनके जो वेट होते हैं ऑलरेडी उस पर डिसाइडेड होते हैं कितने। तो वैसे जितने भी देखो जो गिम्बल मार्केट में जो मतलब जो आर्डिनो की हेल्प से बनाए जाते हैं, उसके लिए हमारे मोटर जो यूज होती है वो होती है 995 या 996 सर्वो। तो आप इन ओके 200 में सर। से कोई भी एक मोटर सजेस्ट मतलब सर्वो मोटर यूज कर सकते हो। पर जो प्रोफेशनल लेवल के आते हैं उसमें लगा होता है BLDC, वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज्यादा स्मूथ, क्योंकि इसमें यस सर, वो सर्वो स्मूथ होता है, उनका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू अपने प्रोसेसर सर्वोस। बेस्ड, वो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं, ये है थोड़ा फर्क। ये जो हम बनाएंगे अभी, जो आप आइडिया लेके चल रहे हो, ये अभी आपका रहेगा एज अ कंट्रोलर बेस्ड। यस सर, वही मैंने देखा था कि कॉस्ट इफेक्टिव के लिए जाना चाहिए मुझे, लाइक ये बन जाएगा 2000 के अंदर, और वो जो सारे होते हैं वो 4000 प्लस होते हैं। वो तो एक ही सर्वो मोटर काफी कॉस्टली आती है, वो गिम्बल वाली, सॉरी BLDC। और BLDC के साथ एक दिक्कत होती है, उसमें अगर लोड आप ज्यादा लोगे तो तुरंत या तो वो ECS डैमेज कर देगा इसका, ये मोटर खराब, आपकी BLDC मोटर खराब हो जाएगी। पर आपके एज अ सर्वो में हमारा इतना कोई फेस नहीं होता, अगर वो नहीं चलेगी तो वो डैमेज नहीं होगी, वो लोड नहीं उठाएगी, बस इतना फर्क है। ओके, हाँ, इतना ही पूछना था सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Okay, now you can turn off your camera, Adarsh. Thank you. And next we have Manav Sharma. Do you have any ideas about your project, Manav? Hello, good evening, sir. Sir, actually, right now I'm outside, but my friend basically tells us everything. Hello, Aditya. Hello. Okay. Hello. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, so our project for the final year is basically a battery management system that we are designing from scratch. One second. And One second. there are some problems we are Aditya, facing. one We second. have, I will actually just refer. Wait, Aditya, wait. Okay, sir. Aditya, I think you have not enrolled for this event, right? Sir, Yes, sir. actually, we are in a group.
We are in a group. I had done this from the whole group side. Okay. So, Manav, you want Aditya to lead this, right? Yes, sir. Okay, Aditya, go ahead. If it is possible for you, Aditya, turn on your camera. Okay, sir. Yes, sir. So the connection is kind of wobbly here, so I will just go on as it is. Okay, no issues. Manav, if it is possible for you, then you can turn on your camera. Okay, sir. Okay, So but should I actually, continue? Now you can continue, Aditya. Okay, sir. So what we have decided is a battery management system to and the progress we have been on is like that we have designed the PCB, the printed circuit boards. We have decided a master and slave architecture for the battery management system, and we have designed the master PCB and the slave PCB. But there are some issues with the design, and we are currently facing. Like one of the issues is the like there are the slave boards, the small slave boards that they are power that have 80 tiny microprocessor in them, and we are currently facing some problem on how to power these slave modules, because they will be connected in series with the specific cells to monitor their voltage, and so the input power at them should also be in series, so that it is evenly divided between all the modules. And so I am experiencing a bit of issue there, and I am also confused as to what it would be actually powered through, as if the battery is not fully charged or something like that. हेलो, हाँ आदित्य। Yes, sir. हाँ, तो आपने बताया कि आपने भी इस पे कितना वर्क कर लिया है? Yes, sir. अभी आपने पीसीबी डिजाइन कर लिया इसका? यस सर, पीसीबी सर मैंने मास्टर वाली भी करी है। मास्टर वाले में मैंने जो आपका आर्डिनो में 88 मेगा 248 होता है या जो होता है वो वाला मैंने यूज करा था। और Okay. क्या बोलते हैं, जो मैंने स्लेव वाली पीसीबी बनाई है उसमें मैंने सर 80 टाइनी यूज करा है, छोटा वाला, क्योंकि उसमें कम ही हमको इनपुट्स चाहिए थे। वो सिर्फ हमें मतलब इंफॉर्मेशन रिले करने के लिए यूज हो जाएगा हमारी। ओके, अच्छा, तो आप इसमें एज अ रिले यूज कर रहे हैं? रिले हाँ आप सर, यूज, रिले यूज करेंगे सर डिस्चार्ज बैलेंसिंग के लिए। ओके 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 ओके। देन और आपने जो इसमें इनपुट किस फॉर्म में लिया, पैरेलल में ले रहे हैं या सीरीज में ले रहे हैं? बैटरी चार्ज कैसे अब कर रहे हैं सर आप? बैटरी जो हमारी है सर, वो हमारी 2x3 आर्किटेक्चर की है सर। तो टू सेल्स हमारे वो पैरेलल में होंगे, और ऐसे 3 हमारे मॉड्यूल्स होंगे जो सीरीज में कनेक्ट हो रखे होंगे। ओके, ठीक है ठीक है। तो आपने बताया कि आपने इसमें प्रॉब्लम फेस क्या हो रहा है आपके इसमें स्लेव और सर जैसे, हाँ सर, जैसे सर वो जो हमारे स्लेव वाले बोर्ड होंगे वो हर जो है हमारे पेयर ऑफ सेल के साथ लगे होंगे। तो हमारे 3 स्लेव मॉड्यूल्स होंगे इसमें एक तरीके से। तो अब इसमें सर असल में जो पावर होनी है उसमें वो 3.3 से 5 वोल्ट के बीच में होती है हमारी 80 टाइनी की पावर, जो हमको स्लेव बोर्ड्स को पावर करना है। और वो जो है तीनों क्योंकि अब सीरीज में लगे होंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं उनके ग्राउंड जो है पर्टिकुलर सेल के साथ अलाइन हो रखे होंगे उनकी वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो हमको सर जो उसका वी इन वाला पिन होगा उसको हमको पावर करने के लिए उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है कि उसको हम कैसे करेंगे। ओके, आपने इसमें जैसे आपने ये बताया ना, आपने पहले तो रिले यूज किया हुआ है, तो रिले को ना आप रिप्लेस कर सकते हो। इसमें एक बहुत अच्छा होता है आपके रिले के अकॉर्डिंगली ऑप्टो कपलर यस सर। आईसी। तो रिले को तो आप ओके रिमूव सर। कर दीजिए ऑप्टो कपलर प्लस आपका ट्रांजिस्टर के साथ, तो ये आपके लिए ज्यादा ओके सर। इफेक्टिव रहेगा। एक तो इसमें क्या रहेगा, जैसे आपके रिले जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट हाँ से सर, वर्क करते हैं। बड़ा भी होगा थोड़ा। हाँ, तो साइज में भी बड़े होंगे, फिर नॉइज भी होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते यस हो, आप सर। ऑप्टो कपलर प्लस ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हो। इसका यस कॉम्बिनेशन सर। बनता है ऑप्टो कपलर ट्रांजिस्टर और एक 1K के रजिस्टर के साथ। तो इसका क्या रहेगा, आपका ओके सर। काम वही करेगा जो आपका रिले कर रहा है ना। और आपने जो ठीक है जैसे सर। बताया, हर एक बैटरी का ना आउटपुट जो मतलब आप ले रहे होगे, आप वोल्टेज डिवाइडर करके हर एक बैटरी को आप मेजर कर रहे हो कितना वोल्टेज आ रहा है।
आप ऐसा कुछ कर रहे हैं इसमें? सर वोल्टेज डिवाइडर वाला नहीं कर रहे हैं सर हम, सर डायरेक्ट ओके मेजर कर रहे हैं, क्योंकि 3.3 या 3.7 वोल्ट है सर पर सेल की वैल्यू। और सर हम ओके वोल्टेज डिवाइडर करते थे तो उसमें हमको एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, तो ठीक है। इसलिए हम सर वो स्लेव स्लेव मॉड्यूल करके वो हर सेल का अलग अलग ही मेजर करते हैं। हाँ तो वो ज्यादा बेस्ट है, आप अलग अलग ही मेजर करिए इसमें ना। तो सबसे पहले तो ये ऑक्टो कपलर वाला यूज करिए कॉन्सेप्ट ऑक्टो कपलर के साथ। दूसरा नंबर, जैसे ओके आप सर। मेजर कर रहे हो, आप में इसमें मेजरमेंट में क्या इश्यूज आ रहे हैं आपको, एक बार आप बताइए। मेजरमेंट में इश्यूज नहीं, अभी सर डिजाइनिंग का ही देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेजरमेंट के लिए तो सर मैं मतलब नॉर्मली पहले वोल्टेज मेजरमेंट ही होगा, एक हमारा सर आउटपुट में मैं एक करंट सेंसर लगा दूंगा हमारे मास्टर बोर्ड के साथ, और क्या ओके बोलते हैं एक टेम्परेचर हमारे सेंसर हर स्लेव बोर्ड में लगा दूंगा एक साथ साथ में मॉनिटरिंग के लिए। ठीक उसकी तो है। सर मेरे को लगता नहीं है ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन मेरे को उसी का हो रहा है कि जो सर स्लेव बोर्ड्स को पावर करने का है ना, क्योंकि वो हम्म। उनके जो ग्राउंड है वो हर उसके साथ कनेक्ट है, और हम उनके मतलब ग्राउंड्स के बीच में ही 3.7 वोल्ट का डिफरेंस आ जा रहेगा, तो हम उसको एक सोर्स से पावर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपने हमको अलग अलग सोर्स से पावर करना पड़ेगा। ओके ओके, तो आपने ग्राउंड तो एक्चुअली कॉमन किया होगा सारे ग्राउंड। नहीं सर, स्लेव स्लेव के सर ग्राउंड अलग अलग होंगे, स्लेव के ओके ग्राउंड्स अलग अलग होंगे। हम्म। ओके, तो आप ग्राउंड कॉमन क्यों नहीं कर रहे हो इसमें, आप स्लेव के? सर स्लेव वाले सर, जैसे सर अब जैसा हमारा वो बन रहा होगा, ये तीन हम्म। सेल हमारे एक तरीके से दूर बाहर से देखने पे तीन सेल होंगे सीरीज में हमारे, जिसके अकॉर्ड जिसके पैरेलल में हमारे तीनों स्लेव बोर्ड्स लगे होंगे वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो सर ठीक है। जब वो पैरेलल में लगे होंगे उन सेल्स के, तो उनका जो ग्राउंड होगा वो अपने आप ही अलग अलग होगा, क्योंकि उनको हम्म उस वाले पर्टिकुलर सेल की वोल्टेज मेजर करनी है ठीक है। हमारे हमारे स्लेव बोर्ड को। देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप जो इसमें चार्जिंग के लिए जो इनपुट यूज कर रहे हो ना, जो यस स्लेव सर। वाले, उसके ग्राउंड्स को आप कॉमन कर दो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसको आप प्लीज अच्छा उसको आप ऐसे मत करिए, मतलब ग्राउंड सबके अलग अलग मत करिए। सर, ग्राउंड सबके अलग अलग नहीं होंगे तो सर वो वोल्टेज मेजर नहीं करेगा ना, क्योंकि क्योंकि वो फिर उसकी जो नहीं, मैक्सिमम वोल्टेज है 5 वोल्ट के ऊपर चली जाएगी। आपका 4 पॉइंट, आपकी अगर बैटरी कितने वोल्टेज की चार्ज कर रहे हो? 3.7 लिथियम आयन बैटरी आई थिंक आप थ्री यूज कर रहे हो। यस सर, यस सर 3.7 का सेल है सर। मैक्सिमम चार्ज हो जाएगी 4 पॉइंट आपका 8 तक जाएगी, 4.6 तक जाएगी मैक्सिमम चार्ज। ओके सर। हाँ तो आपको मैं अच्छा सजेशन दूंगा, एज अ सजेशन मेरा यही रहेगा, आप ग्राउंड सबके कॉमन कर दीजिए, और जो जैसे आप जहाँ से भी इनपुट या आउटपुट हो रहा है, आप वहां से मेजरमेंट कीजिए उसका। तो सर फिर वो पर्टिकुलर सेल की नहीं आ पाएगा शायद सर, क्योंकि मेरे को नहीं तीन अलग पर्टिकुलर, अलग सेल वो। अच्छा ठीक है नहीं सर, मैं फिर आपको वो। आपको ना पता है क्या, सेप ग्राउंड कॉमन करिए, ग्राउंड कॉमन करेंगे आपके लिए ये सर्किट आगे भी इजी रहेगा। क्योंकि वरना आपके लिए पता है प्रॉब्लम कहाँ फेस आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपके पॉजिटिव वोल्टेज भी ओपन रहेंगे, मतलब सारे अलग अलग हैं, ओके वो चलता है। और आप जब ग्राउंड भी आप सबके अलग अलग कर दोगे ना, वो प्रॉब्लम कर जाएगा। और अगर जब तक आप जैसे इसमें आप आई थिंक आप आर्डिनो भी यूज कर रहे हो ना, आर्डिनो कौन सा बताया आपने बोर्ड? आर्डिनो नहीं कर रहा सर, नहीं कर रहा सर, आर्डिनो यूज नहीं कर रहा हूँ, उसका भी मैंने मास्टर जो बोर्ड बना रखा है वो कस्टम ही बना रखा है, मतलब ओके आर्डिनो वाला आर्किटेक्चर लेके एक हाँ कस्टम हाँ पीसीबी बना रखी है उसकी। ओके ओके ठीक है। आपने ए टाइनी का भी जिक्र किया था इसमें कि आपने ए टाइनी, हाँ सर। हाँ हाँ सर, वो जो स्लेव वाले बोर्ड्स है ना सर, जो छोटे छोटे वाले बोर्ड होंगे तीन, उसमें सर 80 टाइनी यूज करा है सर, 80 टाइनी 85। ओके ओके, तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि ग्राउंड को कॉमन कर दीजिए, और जो इसका हाँ पॉजिटिव साइड होता है आप उसको लेके चलिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मतलब आप बता रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ग्राउंड हमें कॉमन करने पड़ते हैं, चाहे आप उसके लिए 4 बैटरी लगाइए, 6 लगाइए, 12 बैटरी, आपका आउटपुट आप एक एक बैटरी का आप अलग से मेजरमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, क्योंकि मैंने नेट पे देख रहा था थोड़ा बहुत, थोड़ा रिसर्च वगैरह अपने हिसाब से, तो मतलब मैंने जितने भी थोड़े बहुत वो डीआईवाई वगैरह वाले देखे, तो उनका सबका मतलब रिजल्ट निकल के यही आ रहा था कि वो यूजुअली जो स्लेव बोर्ड्स हो रहे थे वो उनके ग्राउंड्स अलग अलग ही लगा रहे थे। अब कुछ ने सर एक मतलब मेरे को सोल्यूशन दिखा था इसका, इसको पावर हम्म करने का, अगर अगर सेपरेट सेपरेट ग्राउंड से है
कि मैं जो अपनी वोल्टेज सप्लाई जो उनको स्लेव वोल्ट्स के लिए हो, मेरी जैसे अगर मेरी 3.3 वोल्ट है तो 3.3 इंटू 3 करके वो वोल्टेज करूँ, उसको वोल्टेज डिवाइडर यूज करके उन तीनों स्लेव वोल्ट्स को सेपरेटली पावर कर दूं या तो। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सही है, वोल्टेज डिवाइडर को यूज कर सकते हैं इसमें। ओके सर। हाँ, ये वाला फिलहाल ज्यादा, तो इससे ना आपकी जो रिजल्ट आएंगे ना वो ज्यादा मतलब इम्प्रूव वे में आएंगे। एक्यूरेट आ जाएंगे सर। हाँ ये सर, मैंने आप वही देखा था कि क्योंकि वो पूरा फिर फैक्टर वो जो उसका मेजरिंग फैक्टर होगा वो पूरा यूज कर लेगा उसको, ठीक वरना है, वो तो आप अगर। ना एक काम और कीजिए, जैसे मैंने आपको ऑप्टो कपलर बताया ना, इस पे मैं जोर आपको इसलिए डाल रहा हूँ, ओके इसमें एक और आती है जिसमें आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही आप ऑप्टो कपलर के थ्रू कंट्रोल कर लो। वहां पे क्या रहेगा, ऑप्टो कपलर की हेल्प से क्या रहेगा, आपका पूरा सर्किट जो रहेगा, आपके स्लेव वाले हैं वो सारे यस सेपरेटली सर। पैरेलल, तो आप वहां पे आपको इजीली आप इसको मेजर कर पाओगे। सर ऑक्टो कपलर के बाद आपने क्या बताया था सर? इसमें तीन चीज का सर्किट यूज होता है, ऑप्टो कपलर, एक ट्रांजिस्टर होगा आपका 547, और एक होगा ओके 1K सर। का रजिस्टर 0.25 वॉट। ओके सर। हाँ, ये तीन सर आप। इसकी सर मैंने एक दो वरना सर मैंने आईसी भी देखी थी, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है मतलब, लेकिन वो मतलब वो भी शायद मैं आपको अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, तो सर मैं आपको भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा उसके से। तो मतलब हाँ सर, हाँ मैं अभी इसी पे फोकस करता हूँ या फिर। हाँ हाँ। और अ, बाकी सर हम इसका इंक्लोजर मतलब 3D वगैरह से ही करके देख रहे हैं, और सर हाँ, मतलब लुक वाइज और अच्छा सर रहता मतलब वो। यस सर। है। और वो मतलब प्रोडक्ट इसका अ, इसका सर हम जो प्रिंटिंग कहाँ से कहीं से करवा सकते हैं, अगर आपको आपको कोई अगर अच्छी कुछ पता हो आप आइडिया वगैरह इसका मतलब। आप इनसे इसमें कांटेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइड कराते हैं 3D प्रिंटिंग सर्विस। आप अगर अपना डिजाइन बना लेते हैं तो आपको ओके सर। सर्विस प्रोवाइड करा देंगे इसमें बेस्ट कॉस्ट पे। ओके। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक हेलो यू सो मच। सर, कैन आई आस्क स्मॉल क्वेश्चन? सर, मानव is here. हाँ, मानो बोलो। सर एक्चुअली ये सारी चीजें सर, बेसिकली एक क्वेश्चन मेरे को ये पूछना था। जब हमने ये सारा प्रेजेंटेशन अपने मेंटर्स को बताया था लास्ट टाइम जब प्रेजेंटेशन हुई थी, तो उन्होंने हाँ एक जी। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि ठीक है, तुम ये सब कर रहे हो, अच्छी बात है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली यूज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी, लाइफ उसकी इंक्रीज करने के लिए, यही एक अल्टीमेट एम है। अब हाँ जी। तुम बेसिकली टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, उसका पोटेंशियल मेजर कर रहे हो, वो सारी चीजें ठीक है। बट एक जो एक अल्टीमेटली तुम्हारे को अगर उसकी बैटरी की जो लाइफ है उसे इंक्रीज करना है, तो अल्टीमेटली तुम वो कैसे करोगे? मेजरमेंट तक ठीक है, बट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? सो दैट इज समथिंग वी आर नॉट गेटिंग द आंसर। ओके, देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं, आपने सुना ही होगा, जो आजकल से फोकस कर रहे हैं कि मेटल, मतलब मेटल वाले कॉन्सेप्ट पे कि बैटरीज की मतलब लाइफ को इंक्रीज की जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी जैसे क्या होता है ना, मटेरियल डिपेंड करता है। अगर इसमें बैटरी की आपके अच्छी खासी नॉलेज है एनोड कैथोड्स के ऊपर, तब आप इसके साथ बैटरी के साथ इंटरप्ले कर सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो इसके इंटरनल उसको, आपका केमिकल रिएक्शंस को लेके। तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, तो उसके लिए तो आपको, और बहुत ज्यादा रिस्की होता है जो इसका जो पाउडर्स होते हैं, तो मैं तो आपको मना ही करूंगा कि थोड़ा दूर रहिए केमिकल से। नहीं, वो ब्लास्ट तो होते हैं जो और सर जो इसकी जो स्मोक होता है वो बहुत हेल्थ के लिए बहुत बेकार कहा जाता है, तो इसलिए मैं आपको अवॉइड करूंगा बट कि इस तरफ। बट सर दे हाँ जी, वो ठीक है सर, बट हम अल्टीमेटली उनको सिर्फ एक रिजल्ट निकाल करके दिखा दें कि हाँ इसका टेम्परेचर ये है बैटरी का, या उसकी हाँ, वोल्टेज ये है, तो आप इसको अल्टीमेटली ना सर लॉन्ग वो ड्यूरेशन में लेके चल सकते हो। थोड़ा आप ये बोल सकते हो कि सर इसमें टाइम लगेगा पर हो जाएगा, तो जी। वहां पे फिर क्या रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा, तब आप उसके साथ क्या कर सकते हो, देख सकते हो चीजों को और कंपोनेंट्स को मिला के मैजिक मतलब ऐड ऑन करके, है ना, ये इस तरीके से हो सकता है। पर पहले ही ओके आपको सर। मतलब एक बता रहा हूँ, केमिकल जो है बहुत ये थोड़े डेंजर होते हैं, आप इसको मतलब घर में तो बिल्कुल ही ट्राई ना करिए। नहीं, वो तो सही है सर। हाँ जी, असल में सर दो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं अभी तक, तो दे आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट फ्रॉम अस। सो दैट इज समथिंग वी आर आल्सो फाइंडिंग दैट आंसर कि हाँ एग्जैक्टली हमने वो सब मेजर कर लिया, बट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू टू इम्प्रूव द लाइफ, सो दैट इज समथिंग वी आर नॉट गेटिंग।
So हाँ वो yes. थोड़ा फिर रिसर्च कॉन्सेप्ट में आ जाएगा वो ना, पर रिसर्च बेस में आएगा वो चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर वो ये रिसर्च में आएगा थोड़ा आपका ये पार्ट इस तरीके से। जी जी जी। Okay sir, thank you. थैंक Thank you, sir. यू। So I don't think now we have any other candidate. So we can go for the next slot, Vijay sir. Before that, thank you so much, everyone. Now I would like to take one screenshot. If it is possible for all of you guys, you can please turn on your cameras. Okay, no one want to turn on the camera. It's okay. So let's leave this session. Okay, Manav is here. Anyone else? Purvanshi, are you there? Adarsh? Yes, sir, Yes, I'm sir. there, but there is some problem, so I'm not able to do that. Okay, okay. Okay, so about your certificates, we will provide you soon, and information related to your certificate of this conference will upload to your WhatsApp contact. You can directly download your certificates from our web page. Thank you so much, guys. For any other program, we'll upload everything to our status. Be in touch with us. Okay, thank you. Bye bye. Thank you, sir. Bye.